Hello everyone. So, welcome to this first workshop of DNA Club. My name is Faizan. I am one of the secretaries of DNA Club. Actually, I am not the general secretary of MNC. Okay, I am secretary of DNA Club. So, before we get started, I want to say something about DNA Club. So, basically, we are a group of students interested in designing फैजान and फैजान animation फैजान stuff. एक मिनट फैजान रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लियो Recording हो रही है ना? स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं करी तूने It's being हो रही है recorded. रिकॉर्डिंग। ठीक है हो रही है और गो हाँ तो मैं बोल रहा था कि okay, so who are we? Basically, we are a group of students interested in designing and animation. We like to share our artwork and appreciate the art shared by the others. Okay, so actually, I was talking to some of the guys in the WhatsApp group yesterday, and this is one of the most frequently asked questions that people ask, that do we need to be very good at drawing and sketching, etc., if we want to be good at designing? Answer is no. I mean, but if you are very good at drawing, if you have very good drawing skills, it will definitely help you a lot in designing things. But if you do not know anything about drawing, you can still be a great designer or animator, if you may. So, unlike some clubs, teams, or societies of IIT Kanpur, our club has no prerequisites. Okay, the only prerequisite is Inthu, of course. And so today we'll just teach you basics of Photoshop. I hope you all must have downloaded that software on your devices. And if you are not, please leave a message on that WhatsApp group that you must have joined by now. Uh, I hope you all are on that WhatsApp group. Okay, so let's get started. So I hope you have downloaded Photoshop and installed it. If not, just raise your hand. I will walk you through the installation process then. Okay, nobody is raising. Okay, everyone is raising their hands. Okay, can you unmute yourself and tell me exactly what is the issue that you are facing? Yeah. Hi. Hi, I'm Muskan. I'm not able to download that install that uTorrent web. Okay, but have you installed the Adobe Photoshop? No, because someone has told me that by installing first uTorrent, then only I can install that. Okay. Hello. Even I face the same problem. I think the file is corrupted. But if you have very good internet connection, I can send you the drive link. I mean, you can download it from there. You won't have to download from torrent or Okay, any okay, kind of. fine. That will do. That will do. So, okay, so from that file, can I download it directly from Adobe Photoshop? हेलो Hello. इसकी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा की नॉइज। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा नॉइज। Okay, guys, if you have any any other queries, you can just leave it on that WhatsApp group. Actually, we don't have much time, so all the Sekis are on that WhatsApp group. They are actually the group admins there, so you can just personally message any one of them. They will respond as soon as possible. So first, Actually, I'm not in the group. you're not in the group. I'm not in the group. I'm also Yes. not in the No group. one is. I think no one is. We did not get any link for the WhatsApp group. Or didn't you receive any mail? Tej, We can you received unmute a your- mail, but not regarding any WhatsApp group. Visit our WhatsApp group. हेलो No, हेलो wait, wait. हेलो जिनको लिंक नहीं You मिला can है see. वो फेसबुक रुक जा ईशान जिनको लिंक नहीं हाँ, मिला है बोलिए, अभी बोलिए। you can go to Facebook our official Facebook page. There you will find a post related to this introductory workshop. In there is a form in which you will get the WhatsApp group link. Okay, thank you. फैजान Thanks. ये हाँ। मीटिंग लिंक वर्क नहीं कर रहा है, एक दूसरा मीटिंग लिंक बना के भेज दे फटाफट मेरे को। एक second.
Actually, this is very important. All of you should be on that WhatsApp group because we'll be sending all assignments and everything on that group only. फैजान चल चल रहा है, स्टार्ट कर, आगे कर, चल रहा है अभी, किसी का प्रॉब्लम Okay. Okay, so I will just, I hope you have downloaded the Adobe Photoshop 2020. So I will just go ahead and open this now. So basically, this is just an introductory session to Photoshop. We won't discuss any pro things. This will just be a basic introduction only. So I can, wait a minute. So I'll select create new. You can select any one of these document presents from here. I mean, I like to work with this one, 1080p, 1920 into 1080 pixels. I'll go ahead and create this. Okay. So first thing that I want to talk about is, okay. So I hope you can see my screen. Just go to, if you're, okay, this is a workshop. Okay. Whatever I am doing, you should be following that on your devices. Just go to edit first of all and go to preferences and now performance. Okay, on performance you can see that there is some memory available for Photoshop usage. You can select it as per your requirement, but if you are not currently using any heavy software other than Photoshop, then let Photoshop use as much of this RAM as possible. Ideally, I would like to keep it at 70%. And if you keep it at 70%, then restart and then select OK and restart your Photoshop for so that changes may apply. Okay, so I won't restart it because it was already at 70%. So let me just get started. So first thing is that you can see a bar on the top of my screen. This is called the control panel. Make sure it is visible on your screens as well. If not, then you can just go to Windows and then Options. Okay, or check the options. It will be visible now. Fine. And make sure that Properties panels is also selected as well as Tools and Layers. So first of all, I will talk about layers. Make sure that toolbar is also selected. Okay, this one is your toolbar on the leftmost of my screen. This is the toolbar. Okay, make sure that it is also selected. This one, tool. Fine. So one of the most important features of the Photoshop is the layers panel. Make sure that it is selected as well. It will be visible here. Windows and layers, or F7. So this is my layers panel. Okay, this is one of the most important features of Photoshop or any other designing software. It will also be helpful in your other designing softwares like Illustrator or animation softwares as well, After Effects or any other software. So let's talk about. Yes. मैंने दिमाग बोला था, हाँ सुन, लैग आ रहा है स्क्रीन प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा. एक सेकंड, तो इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है मेरा, मतलब बहुत ज्यादा लैग आ रहा है, मतलब थोड़ी देर रहता नहीं है. लैग नहीं आ रहा है. लैग नहीं आ रहा है एक्चुअली देवांश, तुम्हारे तेरा end लैग पे हो रहा है कोई शायद. प्रॉब्लम. No lag. माइक्रोसॉफ्ट एज बंद कर ले, दूसरी चीजें मत चला. ठीक है, मैं देख मेरा प्रॉब्लम. थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं. मैं मतलब आप जब तक कुछ बोल रहे हो तब तक कुछ और हो जा रहा है. मतलब थोड़ा मतलब साइमल्टेनियसली फॉलो करना मुश्किल हो रहा है. हाँ थोड़ा सा धीरे. ठीक है. एक्चुअली कुछ बच्चों का इसके बाद कुछ और है, किसी और क्लब का, इसीलिए मैं जितना पॉसिबल है उतना जल्दी कर रहा हूँ. प्लीज दोबारा से रिपीट कर दोगे सर? प्लीज रिपीट. सारा तो मुश्किल हो जाएगा. बस मैंने अभी कुछ ज्यादा नहीं बोला, अभी बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं. नहीं, आपने वो जो प्रॉपर्टीज और वो सब एनेबल करने को कहा था. हाँ, प्रॉपर्टीज रिपीट कर दीजिए. हाँ, यहाँ पर मैं बताऊंगा जो विंडोज है, विंडोज में बस ये होना चाहिए, लेयर सेलेक्ट करके रखो, प्रॉपर्टीज और टूल्स और ऑप्शंस, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए. और ये हाँ, ये मैंने बताया था प्रेफरेंसेस में. यहाँ पर एडिट में जाओगे, फिर प्रेफरेंसेस, फिर यहाँ परफॉर्मेंस,
फिर यहाँ पर जो है ये फोटोशॉप को एटलीस्ट 70% ऑफ द रैम जो है इसको तुम ये करो असाइन, वो ठीक रहेगा। सो आई होप यहाँ तक सब ने फॉलो किया। So I'll talk about some of these tools right here. First of all, I'll talk about the brush tool. So I hope everyone is familiar with brush tool. If you are familiar with Microsoft Paint, then you must be aware of brush tool, eraser, and fill also, the paint bucket tool. Okay, so I'll talk about brush tool, and you can see there is this right here is called background color. You can double click on it, and you can select any color of your choice. This is the background color, and sorry, this is foreground color. Sorry, this is foreground color, and this is background color. Okay, so I'll just select black here. So this is brush tool. I can select my brush tool, and I can write anything right here. Okay, fine. So I'll talk. So in your control panel, you can find that you can change the size of the brush or the hardness or softness of the brush. So I'll make it as hard as possible, and I'll alter the size as well. You can also change the size of the brush by this button. Okay, this button, what is this called? Is curly bracket. Curly bracket. You can make the. This is actually a shortcut. If you don't know what I'm saying, this is the curly bracket. Okay, this one. There are two curly brackets on your keyboard. This is for increasing the size of the brush. This is for decreasing the size. Fine. Okay, this is the eraser tool. I'll just erase the whole thing. You can increase the size. Okay, so actually we don't have much time, so I'll show you. I'll talk about layers. So you can just create as many layers as you can just create layers. You can log the layers. You can make some layers visible or invisible that you may want to do. But I'll tell you what is the benefit of these layers. Okay, so I had some images right here. I'll open any image. For example, this one. Okay. So I will create a layer above this layer. Okay, now I have two layers. This is the background layer, and I have created another layer above this. Okay, so I will select my brush tool, and I will show you what you can do with layers. I mean, this layer, this background layer serves as a reference layer to the layer above it. Okay, I can just decrease the opacity of this background layer. You can just first of all unlock this layer. I can decrease the opacity, increase the opacity, and I can just make any basic illustration on it. I mean sketches. I mean, if you are familiar with Adobe Illustrator, you know it is basically for illustrations only, but you can also do that on Photoshop also. So I'll show you how. I'll just draw a basic illustration of it so that you don't get bored to death here. You don't need to follow me here because some of you might be beginners. Just a doubt, are you using something like a graphic tablet or a pen? Yes, I'm using a graphic tablet. Of course, nobody can do it on a mouse. It's very. So graphic tablet is a prerequisite, right? No, it's not prerequisite. If you want to draw good illustrations, then you can do it on graphic tablet. Otherwise, you can also do it on mouse. It will just take a lot of time. Pen tool,
If you want to draw on mouse, then pen tool is best. I will talk about pen tool also. First of all, If let I me have a just. tab and a stylus, will that work Yes, yes, of course. on my tab? There might be some apps on your tablet. I don't know about iPad. I mean, you can just ask any of those secretaries. Many of our seckies also have the iPad, so they must be knowing about that. I actually don't have an iPad, so I don't know about any apps. Okay. Hi, for all those doubts, the people who are asking about iPad, if your iPad can install Photoshop, that just Google this thing, and then obviously you can use iPad and that stylus work thing for Photoshop work. And for those who are thinking that is graphic tablet a prerequisite, see right now Fizan is using pen tool and brush tools here. Okay, you can also use straight lines for making different kind of illustrations. Like the Kurzart's video series, they only use simple straight lines and shapes. We will send you a video about that. And they also make good illustrations using those. So you can do artistic things even via using just straight lines, shapes, and these circles. That's it. You will get to know all those once you get started with all these things. So you can see I'm doing it as fast as I can. If you really want to make good illustrations, you can visit our Facebook page, DNA 101. We have some really good tutorials there. You can just follow them and make really good illustrations. Right now, I want to show you what is the use of layers panel. iPad के लिए भी Photoshop versions available हैं. Photoshop is available for all three iPad, laptop, and mobile phones. Fine. So I'll create another layer, like below this layer, and I will fill it with white color. Okay, fine. So अब मैं देखूंगा कि मेरा वो कैसा बन गया. तो ठीक है, मतलब ज्यादा गंदा भी नहीं बन गया. I mean, थोड़ा तो लग रहा है गस्टावो फ्रिंग. तो मतलब ये मैं दिखा रहा था कि लेयर्स का क्या काम है. ठीक है, तो अभी हमें कुछ और चीजें भी देखनी है. तो मैं अब मैं नेक्स्ट इसके बारे में बात करूंगा, कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में. सिलेक्शन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, मैं कोई इमेज ओपन करूंगा. ठीक है, तो मैं if anyone of you thinking that Wacom tablet is a prerequisite for joining our club or anything like that, most of us who in our club don't have these tablets or anything any other things. ओके फाइन. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरे पास इमेज है. मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है. मतलब मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे इसको किसी दूसरे मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए. वो भी मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकग्राउंड है जो मैं चाहता हूँ, मेरा डिजायर्ड बैकग्राउंड है. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस इमेज को मैं इस बैकग्राउंड पे लगा दूँ. तो देखो मैं ये कैसे कर रहा हूँ. मैंने पहले मैं इनको क्लोज कर देता हूँ. मतलब अगर मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं इनको सेव नहीं करूँगा. बाकी अगर आपको उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूँगा, सेव के बारे में. ठीक है, तो मुझे इसका तो मैं कुछ बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात करूँगा. तो पहला आप सिलेक्शन टूल देख पाओगे यहाँ पे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल मतलब बिल्कुल बेसिक है. मतलब इसमें आप ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये आपका सेलेक्ट हो गया. तो फिर ये मूव टूल है, यहाँ पर देख सकते हो. ये मूव टूल है, या आप अपने कीबोर्ड पे भी दबा सकते हो तो मूव टूल आएगा. तो मूव टूल पे एक्चुअली बस अब मेक श्योर दैट दिस इज चेक्ड. ओके, शो ट्रांसफॉर्म टूल्स. if it's unchecked, then you won't get those options for transformation like this. Make sure that this is checked. Okay, show transform tools. Now you can just drag it around, do anything that you like to do with it. So this is basically the what was it, a rectangular selection tool. To deselect this selection, you can just go here, select, and
deselect, or Control D if you are on Windows, or Command D if you are on Mac. So I'll just deselect this selection. There is also elliptical selection tool. Okay, fine, this is basic. And there is also lasso tool. This is very important. If you want a selection, a custom selection of your choice, then you can use this lasso tool. This is very important. There is also polynomial lasso tool. This is also very important. You can just make any polygon selection. Sorry, not polynomial. Okay, this is polygon selection tool. There's also magnetic lasso tool. This is a really fancy tool. I mean, you can just move it around your object and it will get selected as it is. Okay, fine. Then this is quick selection tool. This is also very important, and this is very simple also, quick selection tool. I mean, if there is no transition, if there is no sharp transition between two colors, then you should then quick selection tool won't be a better option. If there is a well-defined sharp transition between two colors, then you should really use this quick selection tool. For example, I can see there is a sharp transition between these two colors, black and gray. So I'll use quick selection tool here. See, I'll just select the whole ultra white. Okay, fine. Now, there are some errors. I can see that there is some error here. Like this was not supposed to be selected. So I will go here, select and mask. Okay. Now I can if you keep selecting Alt, just select Alt option, Alt button on your keyboard, and by clicking Alt you can just remove the selection. And yeah, I don't know how this works. Okay, fine. That wasn't supposed to happen. I can't see anything. Okay, fine. Okay, I will select his hand also. Okay, looks good. Okay, now. Okay, wait a minute. I'll select it again. हाँ, अब ठीक ही है. मतलब वैसे मतलब कुछ इमेज मैंने थोड़ी वैसी ली थी जिसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी ठीक ही है. मतलब जो सिलेक्शन ये है तो ठीक है. तो अब मैं इसको यहाँ पर ये करूँगा, मतलब मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, तो ये पूरी सिलेक्शन जो है सेलेक्ट हो गई. अब मैं इसको कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ. तो जो मुझे बैकग्राउंड चाहिए था, ये बैकग्राउंड मुझे चाहिए था, मैं इस इमेज को इस बैकग्राउंड पे ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे. आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. There is a hand raise, Saurav Kumar. Wait a minute. Yes, Saurav, go ahead. Yes, I was saying that the video is lagging and everything is glitching, so it's difficult to understand. There might be some internet speed issue. There is no internet speed issue on my end. Actually, that I can see, the video is getting recorded. So if you're facing any issues right now, don't worry. We'll share the videos with you, recorded videos with you. कहाँ पे share करोगे? वो हम बाद में decide करेंगे. अभी decide नहीं किया है. Okay. And if you're also not able to follow along, don't worry. We'll share the video with you. You can do it later. Now listen to this, what is happening. So you'll get an idea. I hope यहाँ तक सबको समझ आएगा. मतलब मेरे हिसाब से सिलेक्शन ठीक हुई. मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, लेकिन ठीक है. मतलब अब मैं कुछ थोड़ी मतलब अभी मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वीडियो का कि आपको बताना कि मतलब इससे मतलब हम बैकग्राउंड कैसे ये चेंज कर सकते हैं. लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा बता सकता हूँ. अभी मैं इसमें कुछ कंट्रोल्स करूँगा, कुछ ये चेंजेस करूँगा. तो यहाँ पर ऑटो टून अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मतलब जितनी शार्पनेस पहले थी मतलब उतनी थोड़ी कम होगी. मतलब पहले बहुत ज़्यादा ये डार्क था, अब थोड़ा लाइट हो रहा है. ऑटो कंट्रास्ट ऑल्सो. आई कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड लेयर एंड वेट अ मिनट, इट्स लॉक्ड.
इसके लिए भी मैं ये ऑटो टोन करूँगा और ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर भी कर सकते हो। अभी भी आप देखोगे कि कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आई विल गो हियर इमेज एडजस्टमेंट्स एंड नाउ कर्व्स। ओके, तो इसको मैं अकॉर्डिंगली डार्क बना सकता हूँ या लाइट बना सकता हूँ। ये अगर कोई बच्चा फेमिलियर है, उसे एडोबी लाइट रूम वगैरह से फेमिलियर है, तो उसको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना। कर्व्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है एडोबी फोटोशॉप में कलर्स के हिसाब से। सो ठीक है, मतलब यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको भी वैसे ही उसी तरह से Go to the adjustment tools and keep playing with it. So you'll understand what is happening Yes, in each and every. So यहाँ तक ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि मतलब ये अभी भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। मतलब ये लग नहीं रहा है, ये डायरेक्टली लग रहा है कि फोटोशॉप्ड है। तो उसके लिए आप अगर आप सीखना चाहते हो कि मतलब ये कैसे ज़्यादा रियल लगे, फोटोशॉप नहीं लगे, तो आप हमारे DNA 101 जो फेसबुक पर है उस पर आप ज़रूर जाओ। उस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको सीखने को मिल जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो हाँ, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब आपको इसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेव एज कर रहा हूँ, तो सेव ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो पहला फॉर्मेट ये है PSD फाइल। मेक श्योर यू ऑलवेज मेक ए कॉपी ऑफ दिस एज PSD फाइल, क्योंकि हमेशा आपको JPG से ही मतलब ये नहीं काम नहीं चल जाएगा। क्योंकि कभी जब अगर आप DNA क्लब के मेंबर हो तो आपको कभी टीम वर्क होता है, तो उस वक्त आपको PSD फाइल में ज़रूरी सेव करना होता है। क्योंकि अगर आप एज ए JPG अपने किसी टीम मेंबर को सेंड कर दोगे तो उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी। तो वो लेयर्स वगैरह सब कुछ लूज़ हो जाएंगी, वो उसमें ज़्यादा एडिट कर नहीं सकता है। तो एज ए PSD फाइल उसको ज़रूर सेव करना। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर मैं PSD फाइल सेव कर रहा हूँ, fazan.psd। फाइन, और इसको एज ए JPG भी मैं सेव करूँगा। JPG। सो अब मैं अपना रिजल्ट देखूंगा क्या किया मैंने। सो ठीक ही है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा गंदा हो जाएगा। मतलब ठीक ही है, मतलब एडजस्टमेंट में जो मैंने वो बताया, कर्व टूल का बताया मैंने, मतलब कलर्स वगैरह ठीक से मतलब आ रहे हैं, मतलब मैच हो रहा है बैकग्राउंड और इससे जो ऊपर वाली लेयर थी। तो ये इसका था अबाउट ओके चेंजिंग द बैकग्राउंड। ठीक है, तो और भी बहुत सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल पेन टूल है। पेन टूल का मैं बताऊंगा कि पेन टूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो पेन टूल तो माउस से पेन टूल बहुत ज़्यादा इजी होता है चलाना। पेन टूल लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको सीखने के लिए अभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको पेन टूल सिखाएं, ये आपको शायद नेक्स्ट वर्कशॉप में सिखाएंगे पेन टूल कैसे चलाते हैं। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में शायद आपको मास्किंग के बारे में बताएंगे और पेन टूल्स के बारे में भी बताएंगे। अभी के लिए आप अगर सीखना चाहते हो पेन टूल क्या होता है तो आप YouTube पे या DNA 101 में जो ट्यूटोरियल है वहाँ पर पेन टूल का एक ट्यूटोरियल है, उसको ज़रूर देखिएगा। So link to DNA 101 page is shared in the WhatsApp group. Join that group, everybody who is present here. And the ones who are not in the WhatsApp group, ping any of the presenters here right now. So we'll add you. तो मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था वो बहुत जल्दी हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2-3 घंटे लग जाएंगे। सो अगर आपको किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको अनम्यूट करेंगे यहाँ से।
हाँ करानाथ चौधरी। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ एक्चुअली वो मैं पूछ रहा था कि इसमें जो कर्व का यूज करते हैं हम हाँ फोटो के लिए या हाँ फिर कलर ग्रेडिंग के लिए, उसको किस तरीके से यूज करें, वो कहाँ से सीखना है? क्योंकि वो फोटो एक्चुअली अगर आप एक सेकेंड, हम मतलब वो ज़्यादा मतलब आप कंट्रोल एम भी कर सकते हो, इससे कर्व्स मिल जाएंगे, या मैक के लिए कमांड एम। तो कर्व्स इसको मतलब सीखने के लिए एक्चुअली ये फोटोग्राफी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कर्व्स वगैरह। आई गेस हमारे कुछ सकीज फोटोग्राफी क्लब से भी है, तो वो आपको शायद हेल्प कर सकते हैं इस बारे में। सारा ने आप No, कुछ बोलना चाहोगे इस बारे? no, actually, for learning any tool, whatever, for learning any of these curves or auto contrast, like contrast, brightness, all these stuff, first of all, what you have to do is you have to try it on your own. Like, change the curve like the way you like, so you'll get an idea what is happening. So in after some time you'll get an intuition on what to do. Or if you have to take the easiest way, then you can go to YouTube, search for tutorials, they'll teach there, you can study. But then I'll prefer that you do it on your own, like go to images and go to brightness and see what is happening to the image when you decrease the brightness, increase the brightness. Use that, do that with everything. And then also do, like, try it for combinations of things, so you'll get an idea on what is happening. Like if you're taking a curve and changing the, okay, I'm not doing it. uh, uh, Five them do one thing, like show them some combination of curves and some auto bright, like brightness stuff, all those things. हाँ हम ये पर आप इसके साथ खेल सकते हैं। देखो कर्व्स के साथ खेल सकते, देखो ये कुछ ज़्यादा हो गया, इतना मुझे चाहिए नहीं, या ये बहुत कम हो गया, इतना भी मुझे चाहिए नहीं। मतलब जिस आई गेस कर्व्स, इसको मतलब सीखने का कोई तरीका नहीं, ये हर एक इमेज के लिए अलग अलग होगा। किसी इमेज के लिए कर्व से कम फर्क पड़ेगा, किसी से ज़्यादा पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, देखो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये हर किसी इमेज के लिए अलग अलग होता है। आई गेस सबसे बेस्ट ये हाँ 2 पॉइंट से जब कर्व को मैनिपुलेट करते हैं तो फिर वो पूरी इमेज की 12 बज जाती है। तो फिर ये मैंने एक्चुअली पहले भी ट्राई करके देखा है, तो वो मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ कि कर्व वर्क कैसे करता है। काफी बार ट्राई करके देखा नहीं। हाँ एक्चुअली हम आपको इस पे एक और, अगर आप इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कर्व्स में, हम आपको इसका एक ट्यूटोरियल भेज देंगे DNA 101 पे, फेसबुक पेज पे। तो आप हमें फॉलो करना, वहाँ पे हम आपको भेज देंगे वहाँ पर। ओके हाँ किसी और ने शायद हैंड रेज किया था। हाँ अरिन कंचन। प्लीज। मैं पूछना चाह रहा था कि ये फोटोशॉप प्राइमरीली एनिमेशन के लिए तो यूज किया नहीं जाता है, और मैं थोड़ा एनिमेशन पे फोकस करके सीखना चाहता हूँ चीजों को। तो दिस वुड हेल्प इन एनिमेशन इन सम वे, मतलब फोटोशॉप सीखना। फोटोशॉप में भी एनिमेशन कर सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप में एनिमेशन होता है। हाँ वो थोड़ा एडवांस है, मतलब कर सकते हैं फोटोशॉप में एनिमेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक चीजें इसमें भी हो जाती हैं। हम आपको इसके बाद वो भी सिखाएंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर सिखाएंगे, तो उसमें इलस्ट्रेशंस आप सीख जाओगे, तो आफ्टर इफेक्ट्स में उसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। एडोबी इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स को मिलके हम बहुत अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। तो हाँ मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है तो आपको वो भी अच्छे से आ जाएगा। हाँ ईशान लाइन से एक बार टूल समझा दे सारे ना, मतलब जो है बारी बारी से थोड़ा बेसिक बता दे कैसे यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले मूव टूल तो समझ आ गया होगा। मूव टूल से हम ड्रैग कर सकते हैं, तो ये शो ट्रांसफॉर्म टूल्स, मेक श्योर कि ये हमेशा चेक्ड है। और ये मैंने बताया रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिलेक्शन टूल, ये भी बता दिया मैंने। मतलब सिलेक्शन टूल बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने इतना सिलेक्शन किया इसका, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, देखो ब्रशेस पे जा सकता हूँ। अगर मुझे देखो जितना मैंने सिलेक्शन किया मैं उसी पे जो है पेंट कर सकता हूँ ब्रश टूल। देखो मतलब जितना मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, जो इसके बाहर आ रहा है,
उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सिलेक्शन का एक ये है। हेलो सुनो, एक सेकंड रुको ना प्लीज, अभी लीव मत करो, इसको असाइनमेंट देंगे तुम लोग को ना, प्लीज लीव मत करो कोई, तुम लोग लीव कर रहे हो। हाँ अगर इनका कुछ और भी है ये तो ठीक नहीं है। मतलब मतलब कुछ लोग को लग रहा है कि एंड हो गया, मतलब तूने बेसिक दे दिया, एंड्रॉप से मैक्स तक खींच रहे हैं अपन को, ऐसा लग रहा है। नहीं अभी अभी असाइनमेंट देंगे हम, और बचा है अभी। हाँ ओके सो ब्रश टूल्स बता दिया था मैंने। पेंट बकेट टूल, आई होप ये सबको पता होगा कि पेंट बकेट टूल से क्या हो सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी होता है। मतलब अगर अगर कभी लगे कि इसका कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा ही हो रहा है, जितना मुझे चाहिए नहीं था उससे ज़्यादा हो गया, तो ऊपर ये टॉलरेंस का ऑप्शन है, इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 सेलेक्ट करूँगा तो ये हाँ तो ये बहुत कम पिक्सल्स को जो है ये करेगा, मतलब पेंट करेगा, फिल इन हो जाएगा इससे। अगर टॉलरेंस को ज़्यादा कम करेंगे या अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से हो जाएगा। ब्लर टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम ब्लरिंग कर सकते हैं। पेन टूल मैंने बताया था। टेक्स्ट टूल तो एटलीस्ट सबको पता होगा कि ये कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके सो टेक्स्ट टूल है तो, और शेप टूल है। शेप टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन एट्सेट्रा। हैंड टूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का हाँ अगर किसी के पास माउस नहीं है तो यहाँ पर ये जूम टूल है, इससे आप जूम इन जूम आउट हो सकता है इससे। सो अभी आप एक और सेकी है डीएनए क्लब के, देवांश जैन, जो आपको शायद इसके बारे में असाइनमेंट्स देंगे। मतलब जितना हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी, वो ब्रश टूल और बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में वो शायद आपको असाइनमेंट्स देंगे। देवांश जैन। हाँ आशुतोष शर्मा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा मेरे को फोटोशॉप इंस्टॉल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप लोग में से कोई हेल्प कर सकता है क्या मेरी? हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको, मतलब आप उसी पे हो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ हाँ तो मैं आपको 6 बजे के बाद आपको बता दूंगा इसके बारे में। ओके हाँ बी अंशुमन। दिव्यांशी जो डाउट पूछ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो फाइल डाउनलोड कर ले बोली। अच्छा ऐसे कि किसी और को कुछ बोलना है, मतलब बताना चाहते हो? हाँ दिव्यांश गुप्ता। हाँ जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो मैंने फाइल डाउनलोड की तो उसके बाद एक फिर से दूसरी फाइल आ रही है डाउनलोड करने के लिए। हाँ वो भी डाउनलोड कर लो, वो भी डाउनलोड कर लो। वो 3-4 फाइल होंगी, सारी डाउनलोड कर लो, फिर उनको जहाँ डीएलएल फाइल्स होंगी ना सारी, वहाँ पे प्लेस कर देना बस, फिर स्टार्ट कर लो। अच्छा ठीक। आयुष कुमार। हाँ वो मेरा ये डाउट है कि जैसे आपने जो अभी बताया फोटोशॉप वगैरह में, तो वो जैसे मुझे और एक्सप्लोर करना है तो वो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? जैसे हाँ मुझे ऑफ जैसे कोर्स। हाँ डीएनए 101 पेज है फेसबुक पे, तो उस पे मुझे वहाँ पर मतलब मिल सारे जाएगा? ट्यूटोरियल्स है। हाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। अच्छा ठीक है। वरना यूट्यूब भी है तुम लोग के पास, मतलब बस एक टर्म सर्च करनी है कि ये जैसे मुझे वो कर्व्स देखने हैं, तो बस कर्व्स टाइप कर देना, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। How does motivation happen? How is motivation dependent on rewards and reinforcements? These are the ओके ओके फिर देवांश तुम्हें कुछ बोलना था असाइनमेंट्स के बारे में? हाँ बट किसी हैंड रेज हुआ है अभी, उनका डाउट है कुछ है?
हाँ, जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो हम आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं बी करेंगे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे भेज देंगे सारे। बी अंशुमन का हैंडल्स है। हाँ, बी अंशुमन। अंशुमन, अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है क्लब के बारे में या किसी चीज के बारे में भी, फ्यूचर वर्कशॉप्स के बारे में जो होने वाले हैं? एक्चुअली मुझे फोटोशॉप इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? लाइक जो आपने ड्राइव में फाइल भेजा था ना, तो वो सब डाउनलोड करने के बाद जो इंस्टॉल होता है तो वो 5% पे रुक जा रहा है और फिर लिख रहा है बार बार कि एरर आ रहा है। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। वो एक्चुअली एक और बच्चे का भी आ रहा था एरर, तो उसमें आपकी एक फाइल शायद मिसिंग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, तो व्हाट्सएप पे आप हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप के ये एडमिन जो है वो सेकीज है, आप उनमें से किसी से भी ये पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। ओके। हाँ, विद्युत नारायण, चिन्मय जोशी। व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको लिंक नहीं मिली उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की? नहीं। Did you get a mail from DNA Club? No, actually, In that, I just applied for the DNA club right now before the meet. okay, actually we have sent out mails. In that there is a form which you have to fill. At the end of the form there is a link which for the WhatsApp group. Okay, then will I get the mail? Like mail is already sent to everybody. Or else you can also go to our page, DNA like Facebook page. There will be a post on aesthetic, like the workshop going on. There also the link to the form will be there. Fill the form, and at the end there will be a WhatsApp group link also. The form is just for a survey, like if you like what you guys want to study, what you guys want to know. So do fill that. Okay, thanks. ओके तो मतलब आपने जो बोला कि मैं चिन्मय जोशी हूँ, वो दूसरा हैंड रेस था। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ओके। सो मतलब आपने बोला एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे आफ्टर इफेक्ट्स और एडोब इलस्ट्रेटर, उसके भी लिंक आप दोगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब आप फ्यूचर में जब भी हम कोई लिंक देंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे टॉरेंट से कहीं से भी डाउनलोड करना हो, तो प्लीज़ जितने भी आपके एंटीवायरस है, विंडोज़ डिफेंडर है, फायरवॉल है, सबको डिसेबल कर देना उस वक्त, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, तो उस वक्त उस वजह से बहुत दिक्कत आई। मतलब सेम होगा ना वैसे जैसे फोटोशॉप आपने शेयर किया वैसे ही होगा ना? हाँ, सेम बिल्कुल वैसे ही। ओके, थैंक यू। This is just the first edition. This is just the first edition of the workshop. We'll have many more workshop on different things. So we'll be teaching you other softwares also. Okay. Thank you. Yeah. सो यस, मेरे हिसाब से हो गया। अगर किसी को मतलब दूसरे क्लब में कभी कुछ ज्वाइन करना है तो प्लीज आप मीटिंग एंड कर सकते हो। आप वहां जा सकते हो। असाइनमेंट। हाँ ओके, हाँ हाँ, जो असाइनमेंट से पहले बी अंशुमन पूछ रहा था, उसका माइक नहीं ऑन हो रहा, तो उसने ग्रुप पर पूछा है कि जो शॉर्टकट्स हैं, ये नॉइज किसकी वजह से आ रहा है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ, तो बी अंशुमन का डाउट है कि जितने भी एडोबी इलस्ट्रेटर मतलब फोटोशॉप के जो शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे। तो जस्ट गूगल कर लो कि एडोबी जो भी तुम्हारे पास वर्जन है शॉर्टकट्स, तो वहां पे कोई ना कोई साइट पे तुम्हें सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, और फिर भी हम ग्रुप पे एक बार शेयर कर देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बोलनी थी। अगर किसी को अभी भी डाउट हो इस बारे में, ये कभी भी किसी को आ सकता है डाउट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि देखो मेरा मतलब ये साइज दिख नहीं रहा है, ब्रश का साइज दिख नहीं रहा है, मैं ब्रश को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, तो मुझे हाँ देखो इसका कोई आइडिया नहीं होगा। तो ये कब होता है? जब आप कैप्स लॉक जो है, कैप्स लॉक अगर आपने ये अपने कीबोर्ड पे ऑन कर रखा है तो उससे आपको इसका साइज नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्रश की जगह ये क्रॉस हेयर दिख जाएगा।
अगर आप कैप्स लॉक को बंद करते हो तो आपको ब्रश का साइज का एस्टिमेशन मिल जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चों को बिगिनर जो होते हैं उनको डाउट आ सकता है। और कुछ? मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। बच्चों, तुम्हें हर कोर्स में असाइनमेंट मिलता है, तो अब हमारी तरफ से भी एक असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, छोटा सा असाइनमेंट है जो भी आज तुमने सीखा उसके ऊपर। सो बेसिकली असाइनमेंट ये है कि ये तुम्हारा फर्स्ट इमेज है। ओके, इसको तुम्हें इसको तुम्हें कट करना है, इस लेडी को, एंड इसका बैकग्राउंड इसको यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है। ओके, आज तुमने यही सीखा कि मतलब कितने सारे सिलेक्शन टूल्स होते हैं और उसमें से मतलब कैसे सिलेक्ट करके इसको कट करना है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि मतलब कौन सा सिलेक्शन टूल यहाँ पे यूज करना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए? मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंटली तुम किस सिलेक्शन टूल से इजीली ये कर सकते हो? ऑटो सिलेक्ट, मैजिक वॉन्ड। हाँ, मैजिक वॉन्ड बैकग्राउंड में करके फिर रिवर्स इन्वर्स कर देंगे। मैजिक को, हाँ ओके, मैजिक वॉन्ड तुम बैकग्राउंड सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर मुझे सिर्फ वो लेडी सिलेक्ट करनी है तो तुम कैसे करोगे? बैकग्राउंड को, हाँ हो जाएगा। मैग्नेटिक वाले से इसका सिलेक्ट, कौन सा सिलेक्ट? क्विक सिलेक्ट का भी एक ऑप्शन दिखाया था। राइट, क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये लेडी सिलेक्ट करने के लिए। जब तुम्हारे बैकग्राउंड में और जो इमेज तुम्हें जो सिलेक्ट करनी है उसको कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है, जब तुम्हारी इमेज बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, लाइक ये पोर्ट्रेट है, ऑफ कोर्स डीएसएलआर से लिया गया होगा। यहाँ देखो तुम, जो बैकग्राउंड में और इस लेडी के इसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, तो तुम्हारा क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ और क्विक सिलेक्शन टूल से तुम बहुत इजीली फटाफट इसको सिलेक्ट कर सकते हो इस लेडी को। ठीक है, देन तुम इस लेडी को सिलेक्ट करोगे और तुम्हें फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करना है इस बैकग्राउंड में, एंड तुम्हारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब मेरे को बताओगे कि मैंने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज करी है अदर देन कॉपी एंड पेस्टिंग? शैडो ऐड किया। यहाँ पे मैंने शैडो ऐड करी, जैसे कि तुमने उसमें देखा कि लाइक जो फैजान ने इमेज किया था ब्रेकिंग बैड का, उसमें है ना उसमें लाइटनेस, प्लीज जिसके उधर से भी नॉइज आ रहा है बंद कर दो अपना माइक। हाँ, फैजान ने जो इमेज किया था उसमें है ना कॉन्ट्रास्ट का इशू आ रहा था, बट यहाँ पे देखें तो हम कॉन्ट्रास्ट का इतना इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइक बैकग्राउंड भी लाइट है, बैकग्राउंड भी बहुत ब्राइट है और मेरी इमेज भी ब्राइट है। अब इसको मुझे और थोड़ा रियलिस्टिक लुक देना है, तो मैं कैसे दूंगा? तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं शैडो डाल देता हूँ तो थोड़ा सा ये और ज्यादा रियलिस्टिक दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं शैडो कैसे ली होगी? एनी गेसेस? अगर हम लोग पहले ब्रश यूज करके फिर लेयर्स चेंज कर दे, पोजीशन ऑफ लेयर्स, तो कैसा होगा? ओके, अगर तुमने जैसे बताया कि है ना ब्रश से अगर करें तो ब्रश से इतना परफेक्शन आना पॉसिबल है? ब्लैक करके और थोड़ा सा क्रॉप करके साइड पे लगा दे तो मतलब, हाँ तुम थोड़ा क्लोज हो उस चीज के, मतलब कि जो बची हुई लेयर जिसमें से अपन ने इमेज को काटा है वहां उसका मास्क बना के फिर उसमें ब्लैक कलर से फिर फेड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट, ये परफेक्ट आंसर था। लेयर के इफेक्ट्स में जाकर ड्रॉप शैडो भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? लेयर के इफेक्ट्स में, लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाके उसका ड्रॉप शैडो भी कर सकते हैं ना। ड्रॉप शैडो फैजान ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, पर उसको मतलब थोड़ा सा आता सही बोल रहे हैं। मैंने वैसे नहीं किया, मेरे को भी पता चला ऐसा कर सकते हैं अभी। ओके, बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये वाली लेडी को सिलेक्ट किया, इसको क्रॉप किया, उस वाली लेयर को मैंने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास इस लेडी की 2 लेयर्स हो गई। ओके, एक को और एक लेयर को मैंने कंप्लीटली ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस वो जो ब्लैक वाली लेयर थी उसको थोड़ा सा मैंने डायगोनली मूव कर दिया।
तो यहाँ पे एग्जैक्टली परफेक्टली वो शेडो वाला फील आ गया इसमें। और फिर मैंने उसको ब्लर कर दिया। ब्लर करना बेसिकली आपने ये सिखाया नहीं है। ओ ब्लर करना अभी सिखा देते हैं। फैजान 2 मिनट सिखा दे, सिखा दे। ये मैं देखता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या अभी? हाँ हेलो। हाँ देवांश, तुम्हारी स्क्रीन मतलब वही वाला तुमने शायद वही ये क्या मतलब क्रोम को शायद शेयर किया है। वेट अ मिनट। क्या सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मैं इस लेयर को अभी डिलीट कर देता हूँ। इस लॉक का ऑप्शन का ओके। तो ये मेरी ये नॉर्मल लेयर है। ओके ये ब्लैक क्यों हो रहा है? हाँ ये मेरी लेयर है जिसमें है ना ये लेडी है जिसको मैंने क्रॉप कर रखा है। ओके ये लेयर कुछ ऐसी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल जैसे मैंने एग्जैक्टली इसकी कॉपी बना दी। ओके एंड देन मैंने कॉपी बनाने के बाद यहाँ मैं गया सॉरी ह्यू एंड सैचुरेशन में। ओके एंड मैंने इसकी लाइटनेस हेलो देवांश। हाँ वो पैनल बताया नहीं यार अपन ने, तो फिर वो कंफ्यूज रहेंगे बच्चे। जो बताया उससे करना, मतलब वो अच्छा सुन, वो कौन लेयर से को करूँ? नहीं, वो लेयर को सिलेक्ट कर और वो ब्रश से पेंट कर दे ब्लैक। अच्छा ब्रश से इतना परफेक्शन के साथ पेंट नहीं होगा ना वो? अरे नहीं नहीं, उस कंट्रोल क्लिक कर, वो जो सिलेक्शन है तेरा उस पे, तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जो लेयर पे सिलेक्टेड है उस पे कंट्रोल क्लिक करेगा। और है ना ये क्यों नहीं काम कर रहा? ओके हाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया। ठीक है देन मैंने यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन पे गया। ओके ह्यू एंड सैचुरेशन में क्या कर सकते हो तुम, मतलब इमेज के जितने भी कलर हो ना उनके साथ खेल सकते हो। कर्व वाले ऑप्शन से थोड़ा सिमिलर था बट यहाँ पे तुम थोड़ा और ज्यादा बेटर वे में उन कलर्स के साथ खेल सकते हो यहाँ पर। ओके देन फिर मैं यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन डालने के बाद मेरा कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा। ठीक है फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लाइटनेस क्या करा, 0 कर दी बिल्कुल।
-100 कर दी, सॉरी। अगर मैं लाइक -100 कर दूंगा देन ऑफ कोर्स पूरा सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन उससे क्या हुआ, मेरा पूरा के पूरा इमेज ब्लैक हो गया था। फिर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या हुआ, जो मेरा सिलेक्टेड पोर्शन था उसमें वही से ब्लैक हुआ, तो कुछ ऐसा दिखने लग गया ये, ठीक है। एंड अब ये ऐसा दिखने लग गया, इसको मैंने हाइड कर रखा है, ये एग्जैक्टली इसके पीछे है, ठीक है। अब मुझे शैडो वाला लुक देना, तो मेरे को इस लेयर को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा डायगोनली, ओके। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए एंड इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये लेयर मूव नहीं हो जब मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा, ओके। या फिर ये मैं सिलेक्ट पे गया एंड देन मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ब्लैक लग रहा है, शैडो जैसा फील नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा। अब ब्लर कैसे करोगे, यहाँ पे हाँ फिल्टर में गए, फिल्टर में यहाँ पे ब्लर ऑप्शन है, ब्लर में हम गॉसियन ब्लर करेंगे, गॉसियन करने गए, यहाँ पे आप रेडियस देना होता है। एक्चुअली मैंने पहले कर रखा था 63.5, ये मुझे सबसे ज्यादा सूट हुआ। यहाँ पे अपन डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करके देखते हैं। 10 कुछ ज्यादा दिख रहा है, अभी भी वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं 80 कर देता हूँ। 80 कुछ ज्यादा ब्लर हो गया, और 60 के आसपास करके देखते हैं, 63 कर देते हैं। 63 पे डिसेंट दिख रहा है। तो ऐसे तुम्हें वैल्यूज के साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, देखने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता कि तुम्हें वही करना है, ये इमेज टू इमेज वेरी करता है, तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा नंबर के साथ खेलो एंड तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। और इसको करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं जो कि तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो अपने टाइम पे, जब तुम ये असाइनमेंट करोगे तब। सो बेसिकली ये असाइनमेंट था, नेक्स्ट वर्कशॉप पे तुम्हें ये असाइनमेंट करके लेकर आना है। और किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ये असाइनमेंट करने में, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एफबी या व्हाट्सएप पे, या फिर किसी ग्रुप पे अपना डाउट डाल सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे सैकीज हैं, वो तुम्हारा डाउट रिजॉल्व कर देंगे। एंड उस ग्रुप में जितने भी एडमिन्स हैं वो सारे के सारे सैकीज हैं, तुम उसमें से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड हाँ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि लाइक फोटोशॉप का एक्चुअल पावर तुम्हें अभी पता नहीं चला होगा, या फिर जो तुमने आज सीखा उससे। तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, ये हमारे क्लब की सैकी सारंगिया सतीश ने बनाया था, जो आज तुमने सीखा उसी से। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, except the background, the spiral thing, everything else is done with whatever you have studied today. Okay, like I have a video in where like I have the screen recording of how I did it. I'll share it with you after Devansh is done. इसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अलग अलग है ना जगह से उठाए गए हैं, और ये पूरा का पूरा कंपोजिशन बनाया गया है। हाँ, yeah, Can I sure. share my screen? Yes, Saranya, please go ahead. Okay. Give me, wait a minute. Let me stop my screen share. Oh wait, where is it? Include computer sound. Can you see my screen? Yes. Is it audible? Is it audible? Was it audible? Yeah. Okay. Yes, it is audible. Okay. Till in the starting part, you can just ignore. It's just how I made the background. That you haven't studied yet. But then after I've made the background, it's just about selection and copy pasting. Okay. See that how I did it.
now on, it's all about selecting the things and copying and pasting. These are the shape tools, custom shape tools that you see here. This one, this thing. See here, I'm selecting using the quick selection tool. Here I had no idea of how to use the curves. I was just seeing using both the things and just doing here and there and seeing if it matches the background, if the certain image matches the background. That is all what I did. So if you play with those tools, you'll get an idea how to use it. That's all. Basically, all that I've done here is, how do I stop sharing my screen? अगेन उस आइकन पे क्लिक कर दो, स्क्रीन शेयरिंग वाले आइकन पे. I'm not able to stop. So basically, the starting part was just making the background, which you'll study later, all those things. The second part was mainly, I had many, the topic of this thing was psychedelic art. So basically, I just wanted to do something dreamy. Like I didn't have anything in mind. So basically I went to Pinterest and so many images. And then all those images just looked nice. The lady jumping over the man, a moon, a person just like the person you just saw near the moon. It was just a person with a balloon. So all those things I just saw and I was like, okay, let me do something with this. And then I added a background and simply selected those things using the quick selection tools, added it to the background and then played with the curves. So this is all what I did to make that entire composition. So you can also try this out at home. Like now you have your Photoshop downloaded. So simply take some images, use the quick selection tools, use the curve tools, the brightness, everything. Try it out. That's it. You don't have to worry about anything else. Just try it out. You'll find that you are getting very good results. And then with this, you'll also learn how to use these things. So that's it.
ओके, किसी किसी और सगी को कुछ बोलना है कल के वर्कशॉप के बारे में? कल के वर्कशॉप में ब्लेंडिंग को मास्किंग सिखाएंगे। एक सेकंड रुकना। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हेलो। ईशान। हाँ, हाँ अगर कल के वर्कशॉप में आप ये बना सकते हो, अगर अच्छे से देख लिया तो बेसिक ही है ये, बस थोड़ा टाइम लगेगा ये बनाने में, तो ये सिखा सकता हूँ मैं। कल के वर्कशॉप में आप ये सीख सकते हो। और हाँ ईशान, तुम कुछ बोल रहे थे, तुमने अपने आप को म्यूट किया। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था मास्किंग और ब्लेंडिंग सिखाएंगे कल। तो मैं बता रहा था क्या क्या चीजें बना सकते हैं हम कल की वर्कशॉप से। ठीक है, कल की भी अटेंड करना सब। तो ठीक है, तो मतलब आज का इतना ही था एक्चुअली। तो ठीक है, किसी और को शायद किसी और क्लब का कुछ होगा, तो ठीक है, जिसको जिसको अभी कोई काम नहीं है वो जा सकता है। If you डाउट्स have पूछने any के more रुक सकते doubts, हैं। then you can, if you have any doubts, we'll still be here. You can ask doubts right now. असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, मतलब जो आपने बोला था असाइनमेंट It will be ये shared कर। through WhatsApp group. ओके। The ones who haven't joined WhatsApp group, do that too. वर्कशॉप्स कब कब होंगी? लाइक डेली और ऑन द वीकेंड ओनली? अभी तो 2 ही रख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे हम। मतलब कल एक वर्कशॉप है 4 से 6, उसके बाद अगर और प्लान करेंगे। ओके। And then if you are trying something, you can post that in WhatsApp group. We'll give you reviews on what you have done. We'll appreciate it if you can try something on your own and then show it to us. Would the recording be shared for today's session? Yes, yes, we will share it, but we haven't decided where we will share it, but we will definitely share it. Okay, thank you. Should we leave? यस ठीक है, तो अभी किसी की मतलब किसी और को शायद कोई और डाउट नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं मीटिंग को एंड अप कर रहा हूँ। ठीक है। आई गेस मीटिंग एंड नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक। किसी और को भी कुछ पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, जिसको नहीं पूछना हो कुछ, वो मीटिंग लीव कर सकते हाँ मतलब लाइक जरूरी नहीं है कि डीएनए से ही पूछना हो, ऐसे पुल्ला काटने के लिए कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये फोटोज आपने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी? हाँ, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अरे साइट्स तो बताई नहीं यार अपने शिट इन लोग को। पिक्साबे नोट कर लो, जो लोग अभी है मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगा। पिक्साबे सिर्फ लॉगिन करना है, उसके बाद आप कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हो हाई क्वालिटी में। हाँ, एक और वेबसाइट भी है, उससे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, freepik.com। हाँ, फ्रीपिक है, उस पे बिना लॉगिन किए डाउनलोड कर सकते हो। देन अनस्प्लैश पे भी बहुत सारी अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, सोनल हम लिंक शेयर कर देंगे, हम लिंक शेयर कर देंगे हम लोग को। हम लिंक शेयर कर देंगे एक डॉक में डाल के सारे साइट। वीडियोस के लिए भी कोई होती है ऐसे? वीडियोस के लिए भी होती तो है, वो हमें मतलब ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट कहाँ पे पड़ा था। हेलो नहीं, पिक्साबे मुझे पे थोड़ा वीडियोस पर्सनली ऐसा लगा वीडियोस फास्ट मिल फास्ट जाते हो गया शायद थोड़ा मेरे लिए, तो ऐसा कुछ रिटन गाइड जैसा कहीं नहीं मिलेगा क्या?
है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था फोटोशॉप, तो आप लोग जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके मतलब एडिट कर रहे थे और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था द एज, है ना। तो मिस आउट करने से अच्छा है कि कहीं और मतलब कहीं अगर ये सब गाइड जैसा लिखा हो या फिर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ हो। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी ना, उनसे देख ले। हाँ एक्चुअली हम इसकी ये जो आज हुआ था इसकी हम रिकॉर्डिंग कहीं पर पोस्ट हो जाएगी, लेकिन आज एक्चुअली ये हुआ था मुझे टाइम का एस्टिमेशन मतलब उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई। मैं सोचा था कि 2 घंटे में शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 1 ही घंटे में हो गया। सो मुझे उम्मीद है कि कल ये नहीं होगा, कल बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझाएंगे। कल 2 घंटे के ऊपर भी जा सकता है क्योंकि कल काफी चीजें बतानी। हाँ अच्छा, तो आप वो जो कह रहे थे कि DNA 101 जो भी है, तो उसमें मतलब वो उसमें मतलब स्क्रैच से सब लिखा हुआ है क्या, ऐसा कुछ है गाइड जैसा? DNA 101 has many tutorials like YouTube tutorials that we have posted. Like हाँ राइट, अगर आप go YouTube to पे हाँ वही the पूछ रहा था। go to the end. Like right now it has Photoshop, Illustrator, and After Effects. So go to the very end of the page. So over there you'll get many tutorials. Like follow it step by step. And like actually we got an entry from somebody, some Y20 who did a great job. Like I don't know who that was. I don't remember who that was. But then they followed DNA 101 and they did the very first assignment posted in DNA 101. So you guys can go to join the group and join the FB group DNA 101 and go to the very last. Over there you'll find many Photoshop tutorials. So follow along. हाँ, अगर आप YouTube पे ऐसे ही कोई मतलब टॉपिक सर्च कर रहे हो, कुछ आपको सीखना है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि किसको देखना है। तो DNA 101 में हमने एक्चुअली सेलेक्टेड ट्यूटोरियल्स वहाँ पे डाले जो आपको मतलब बिगिनर लेवल है, तो वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। And also keep exploring. Like if you have something, like if you want to learn something, just go to YouTube and search for tutorials and do it. Like all of us are in the studying stage still. Like we are not designers, so even we do is like if we see some designs and we want to do it, we just search some tags related to it, and then we'll see many tutorials, go through them, explore. Like it's all about just googling stuff, trying it out. Like you just have to what do I say, there is no fixed way on which you can learn designing. Okay, so try हाँ, it out. इनफाइनाइट प्रोसेस One है more advice. फोटोशॉप डिजाइनिंग एनिमेशन। गाइस वन मोर एडवाइस, अगर कोई ट्यूटोरियल फॉलो करते हो तो उसे एग्जैक्टली वही फॉलो मत करो कि लाइक वही इमेजेस तुमने डाउनलोड कर लिया एंड तुम वही कर रहे हो कि जो वो स्टेप बाय स्टेप वही कर रहे हो जो उसने किया। उससे रिलेटेड दूसरी इमेजेस ढूंढो एंड उस पे वो ट्राई करो। हाँ राइट, हाँ सोनल अग्रवाल इनका हैंड रेज्ड है हाँ काफी। मुझे डाउट है कि मेरा लैपटॉप टच है बट फोटोशॉप पे द टच डज नॉट वर्क। आई डोंट नो व्हाई। ये तो टच लेना नहीं चाहिए। मतलब नथिंग हमारे पास किसी क्लिक्स से ऑन का टच फोटोशॉप। लैपटॉप मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, उसका वो टच स्क्रीन लैपटॉप था, लेकिन उसके लैपटॉप पे काम करता था फोटोशॉप। बिकॉज लाइक अगर मैं कोई भी फोटो ले रही हूँ और उस पे लाइक फॉर एग्जांपल इरेजर टूल भी चला रही हूँ तो वो टच से नहीं चल रहा है, माउस से चल रहा है। हेलो, लाइक जो फोटोशॉप में लेआउट्स होती है ना, उसमें एक ऑप्शन होता है टच का, ठीक है? तो एक बार वो ट्राई करके देखना, उससे हो जाना चाहिए। ओके, लेआउट्स ओके मैं ट्राई करूँगी। हाँ उसमें ट्राई करना। ठीक है, ओके थैंक यू। और किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट है? एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयरिंग अभी तक ऑन थी क्या?
Good job.